हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम फिलहाल आपने ट्यून इन कर लिया है। एंड आप सुन रहे हो भोपाल की सबसे बड़ी वेली निशी को, जो कि 12 से 3 आती है और जमाती है वेलाबंदी का अड्डा। तो भाई साहब आज है दिन सैटरडे का एंड आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब सैटरडे को तो निशी के साथ कोई ना कोई वेलाबंदी करने के लिए आता है, या तो स्टूडियो है या तो टेलीफोन लाइन से जुड़े। तो मैं बता दूं आज निशी के साथ वेलाबंदी करने के लिए आए नहीं है, टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं स्वयं श्री 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 हरिहरन सर, हु इज इंडियन प्लेबैक सिंगर, भजन सिंगर एंड गजल सिंगर। साथ में हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विक्रम घोष सर। हेलो सर। हाय निशी, हाउ आर यू? सर आई एम परफेक्टली फाइन। एंड जब आपने हेलो बोला मुझे ना एकदम कान में ऐसा हाथ लगाना पड़ा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। सर सबसे पहले तो भोपाल की जनता इज सेइंग अ बिग हाय एंड वो आपको बहुत बार लाइव सुन चुकी है। तो हमारा पहला सवाल ही हम भोपाल से जुड़ा हुआ रखते हैं। सर आप इतनी बार भोपाल आए तो आपका एक्सपीरियंस भोपाल की जनता के साथ एंड भोपाल में कैसा रहा है? भोपाल इज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी, क्योंकि ऐसे जब मैं गजल प्रोग्राम्स वहाँ करता हूँ, मेरे ख्याल से 7-8 या 10,000 लोग आते हैं सुनने। Yes. और ऐसे सुनते हैं कमाल। हाँ जी सर, यही तो बात है, भोपाल की जनता की प्यार देने में एंड खूबसूरती मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है हमारे सारे भोपाली। फिलहाल तो हरिहरन सर के साथ एंड विक्रम सर के साथ इस वेली निशी ने ढेर सारी बातें करी है। सुनाऊंगी ब्रेक के उस पर, आपने कहीं नहीं जाना है, निशी के साथ यहीं पर बने रहना है। दैट इज ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अजनबी हम भी है तुम भी हो, ये रातें भी हैं, जाने पहचाने से यूं लगते बातें क्यों है। अजनबी हम भी है तुम भी हो, ये रातें भी हैं, जाने पहचाने से यूं लगते बातें क्यों है। हम तो नजरों के पलकों पे यूं घायल है, लब पे लफ्जों का ये पहरा क्यों है। ગુજરાતીમીડિયા.com સાથે આજે છે પંડિત હરિહરન અને પંડિત વિક્રમ ઘોષ, બહુ જ સરસ કલાકારો, અને એમની સાથે આજે વાત કરીશું એમના એક નવા વેન્ચર વિશે, પ્રેમના ગીતો પ્રેમની વાતો. Please tell us about this interesting venture that you decided to build, because I think एक पुराने फ्लेवर का जो एक संगीत था वो आप इसके साथ हमारे पास वापस ला रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट विक्रम जी से हुआ, तो बताएं आप। हरि जी और मैंने एक एल्बम किया था 2.5 years back called Ishq, and Ishq did very well. We did that in the pandemic, and after the success of that album we were thinking कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए. How can we do something even more interesting? How can we utilize our chemistry, our kind of zone of sound? See, the idea is there's nothing that's old or new. Everything has been there. It's a matter of discovering and matter of how people perceive it. The idea with the kind of music that we are doing together is that it's definitely a big plus for good melody, a big plus for good lyrics, definitely and obviously great singing and some very good instrumentation, you know. तो क्या है कि we want to bring in the sounds of live instruments once more to the foreground, you know, Yes. which has kind of taken a backseat in recent years, that, you know, there's a lot of programming happening and less of live instrumentation. But with our work, we like to keep the live right up there in front, because all those musicians, fantastic artists, beautiful instruments, which are part and parcel of the Indian history, sound, psyche, what have you, you know. And we want to bring that into the foreground. And we both believe that with that kind of instrumentation, there are a lot of energies that come. Those great artists bring great energies. And that, when it supplements a project, it straight away hits your heart. That's why a lot of people keep saying, you know, पुराने ज़माने के जो sound था, जो it's all about melody, lyrics and instrumentation. End of the day. क्या है कि ये सारी जब चीज़ें मिलती हैं, मन मर्जी has songs where there is, in Hindi you call it गूंज. गूंज, जी बिल्कुल सही. Gунj, vibration. It happens when you use real instruments, because that sound is not squeezed. It's the way
it should sounds. be. It should, the natural sound, you know. Natural Pure resonance होता form, है. उसका से And- pure form होता है. Yeah. हाँ. And when the composition complements it, and the singer also complements it, that vibration becomes more and more. So this, like, Man Marzi is a chill pill. True. You just listen to it and you're on your voyage for the next 45 minutes. Wow. Yeah. Wow. So that's what has been created, and it goes to meaningful lyrics, beautiful composition, sounds, Ghana. It's just a total package, I would say. Thank you. Thank you. It was lovely talking to both of you. Thanks a lot. Thank you. Great very questions. much. We enjoyed the interview. Thank you. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. आज मेरा मूड आ रहा है कि हरकत लूं, तो हरकत ही हो गया गाना. कभी सीधा गाता हूँ तो कभी सीधा नहीं गाते हैं, यही शिकायत लोग नहीं करते हैं। सीधा गाता हूँ, बहुत सीधा गाता हूँ कभी कभी. अजनबी हम भी है तुम भी हो, ये रातें भी है, जाने पहचाने से यूं लगते बातें क्यों है. हम तो नजरों के पलकों पे यूं घायल है, लब पे लफ्जों का ये पहरा क्यों है. रात खुश चांद खुश मौसम खुशनुमा है, कर दो हाल दिल बयां सोचे क्यों है. हो रात खुश चांद खुश मौसम खुशनुमा है, कर दो हाल दिल बयां सोचे क्यों है. हेलो, मैं हूँ हरिहरन. नमस्कार, मैं हूँ विक्रम घोष और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं. एक एल्बम लेकर आ रहे हैं, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज कर रहे हैं. थैंक यू. धन्यवाद. हमारा एल्बम का नाम है मन मर्जी. तो क्यों मन मरीज ने फिर हाँ, हम ला रहे हैं जो एल्बम, उसका नाम है मन मर्जी. तो मुझे बताइए कि ये नाम जो है ये क्यों रखा गया, इस एल्बम का नाम मन मर्जी? क्योंकि हमने जो मन में आया वैसे ही म्यूजिक बनाया. एक्चुअली कोई डिक्टेट दिमाग में नहीं था, कोई वो टेंशन नहीं था कि कैसे इसको बनाएं, बनाया जाए, यो आजकल ये चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे, वो सब कुछ नहीं. अपने दिमाग में जो आया, जो म्यूज़िक हमें पसंद है वो हमने बनाया. और वो म्यूज़िक जितने लोगों ने सुना है, अभी तो इट्स नॉट रिलीज्ड, सबको बहुत ही अच्छा लगा है. सो मन अगर साफ हो और उस मन से जो मर्जी है वो निकले तो शायद काम अच्छा होता है. और वो उसका है ना, ये सारे गाने जो हैं इसमें टेक्निकल है, गायकी है, सब है, मगर आप गुनगुना सकते हैं. इट इज़ वो एक इजी लिसनिंग है. और बिल्कुल आप एक दो बार सुनेंगे आप गाने लगेंगे. से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं इस एल्बम के लिए. थैंक यू जी. थैंक यू. Firstly, welcome to the channel. Thank you. ये जानना चाहिए मन मर्जी सुनते ही ऐसा लगता है क्या कुछ इसके पीछे छुपा है, और आपके ख्याल में कैसा है इस मन मर्जी के बारे में? बस हम दो ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो एक उसमें म्यूज़िक है. तो हमने सोचा कि इस बार हम जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चले, म्यूज़िकली चले और कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करें. Notwithstanding what genre it is, what trend is happening, we have nothing to do with it. We wanted to get
5 soulful songs. He composed it, I sang it. What is something different are we going to see in this? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है जो गाने की lyrics की आवाज़ है बहुत ही कम आजकल म्यूजिक में सभी चीज़ें सुनने मिलती हैं। किस तरीके से आपने पूरा शूट किया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 अलग अलग चीज़ें। देखिए, एक तो अभी जो टाइम है अभी, इस टाइम में आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो परसेप्शन के हैं कि इस तरह का काम चलता है, इस तरह का साउंड लोग सुन रहे हैं, ये पॉपुलर है, बट एक्चुअली जो है म्यूज़िक हर ज़माने में तरह तरह का म्यूज़िक को एग्जिस्ट किया है। आप सोचिए, जिस ज़माने में हम बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्म्स देखते थे, 60s मानिए, 50s, 60s, 70s, उसी ज़माने में पंडित रविशंकर उधर is doing such great work internationally with classical music. फिर Purnadas Baul is doing international work in the same period. I think जो हमारा जो मन की इच्छा थी कि ऐसा काम करे जो एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है ना, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए सही है, और एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है जो कि एनी टाइम 50 years later भी आप सुने तो आपको मजा लगेगा। सो उसी हिसाब से ये बना है, एंड इसमें आप बहुत लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सुनने को मिलेगा। जॉनर्स अलग है, कभी कव्वाली है तो कभी ब्लूज़ है, तो कभी सूफी गाना है, और जो जिस गाने के जिक्र आप कर रहे हैं, दरिया, वो दैट इज अ सूफियाना सॉन्ग, नॉट टिपिकल। मतलब ऐसे कि नहीं कि ऊपर गा रहा हूँ मैं। हाँ, वो ये कौन हर गाने में पुकार नहीं होता है सूफी का। सूफी से फिलॉसफी, सूफीज़म से फिलॉसफी। तो आप बड़े प्यार से सॉफ्टली कैन सिंग अ सूफी सॉन्ग, और उसका लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे इस गाने में क्या है, द फर्स्ट लाइन इज दरिया के जल में बादल के टुकड़े। सो ये थॉट जो है, दिस लीड्स द सॉन्ग इनटू वेरियस प्लेसेस। तो मतलब दरिया नीचे है, आसमान ऊपर है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो दिस इज अ सूफियाना थॉट कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक है, जॉइंड है किसी न किसी तरह, इंसान जैसे जॉइंट रहता है। It is infinite, but it joins. Yeah. So there's a lot in the album. There's a lot of depth in it. Yet it is easy listening. Yet it is simple. आपको सुनने के बाद आपको गुनगुनाना मजा आएगा. But आप थोड़ा सा अगर घुसना पसंद करते हैं गाने के अंदर, तो वहाँ भी आपको बहुत ट्रेजर मिलेगा कि वो साउंड का ट्रेजर है, लिरिक्स का ट्रेजर है, गायकी का ट्रेजर है, बहुत कुछ है इसमें। सुनते ही मैं तो मगन हो गई, लेकिन साथ ही वो ऑडियंस भी आज आपको देख रही है, उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार करती है हर एक नए गाने का? जी, हम दोनों मिलकर एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है मन मर्जी। और हमें अच्छा लग रहा है सारे गाने, और आप ज़रूर सुनिएगा। Hi everybody, this is Hari Haran and you're watching Awesome TV. Hi friends, this is Bikram Ghosh and you're watching Awesome TV. चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। My उस्ताद जी used to say, बेटा कभी भी शागिर्द रहो, उस्ताद बन जाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। वर्शन सिंगिंग एंड ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब एक तो पहले तो रिकॉर्ड करते थे, अभी आप अच्छे भले सिंगर्स, वेरी गुड सिंगर्स, दे आर ऑल सिंगिंग वर्शंस। वी आर द रेयर
collaborators who have done 2 albums in 3 years. ये भी है. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज का इंटरव्यू बहुत खास है क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही दिग्गज सिंगर यहाँ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ म्यूजिशियन एंड म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं. सबसे पहले तो पद्मश्री विनर एंड उसके साथ साथ नेशनल अवार्ड विनर. सबसे पहले तो हरिहरन जी, मैं कहना चाहूँगी दैट बिग फ़ैन, वेरी बिग फ़ैन. मुझे आपके सारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे लगा हवा कहाँ से आ रहा है. नहीं सच्ची. और साथ ही साथ वैलेंटाइंस डे है, प्रेम का मौका है और अगर हम इस इंटरव्यू में, मौका भी है दस्तूर भी, अगर हम इस इंटरव्यू में एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ शुरुआत करें जो आपका गाना है चंदा रे, तो बहुत अच्छा. चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते ना रहो ना ला रा 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 रा. 4 चांद लगा दिया आपने, चंदा रे और 4 चांद लगा दिए. विक्रम घोष जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी दैट आपकी भी कला बेहद बेहतरीन है और आप दोनों का एक नया एल्बम आ रहा है मन मर्जी, जिसके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है. तो सबसे पहले, हाउ डिड यू गेट दिस ऑन बोर्ड? See, Hariji and I had done 2 years back the album called इश्क और वो बड़ा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा. और इश्क के सक्सेस पार्टी के बाद मैंने हरि जी को आई इनवाइटेड हिम टू माय स्टूडियो इन कैलकाटा एंड ही केम. वहाँ पे उनको मैंने 5 गाने सुना दिए और ही सेड बड़ा अच्छा है लेकिन मतलब हु इज सिंगिंग. आई सेड हरि जी आप ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है. सो राइट after we started working and this time around I was more focused on utilizing Hariji's versatility and his range. तो मन मर्जी जो नया प्रोजेक्ट है इसमें हरिजी is heard singing from Qawwali to blues to Sufi to Geet, all kinds of songs. So ये I think this is a more versatile album. Ishq was a soft geet driven album. तो अभी ये प्रोजेक्ट बनता गया और बनता गया इसलिए इसका नाम हो गया मन मर्जी. We said let's just call it, what is the name of the album? We do what we feel. मन मर्जी, वी डू व्हाट वी फील. क्या बात है. जैसे कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, आपने कॉन्सर्ट से लेके ऑर्केस्ट्रा, भजन और हर तरह के गाने गाए हैं बॉलीवुड. तो कोई ऐसा संगीत है जो आपको अभी भी गाना है या कुछ भी ऐसा? पता नहीं, आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि कुछ ऐसे हो कि सीख सकूं और गा सकूं, अलग लगूं मैं उस गाने में. Better to be a learner than a teacher, I think, lifelong. मैंने मतलब माई उस्ताद जी यूज्ड टू से, हम उसको बोलो बेटा कभी भी शागिर्द रहो, उस्ताद बन जाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे. Something to that effect, you know, he told me. It was amazing. एक सिंगर और एक म्यूजिशियन का बॉन्ड, एक गाना तभी हिट होता है जब इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो और आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखकर आ रहा है गाने में भी. तो आपके बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बॉन्ड काफ़ी उसका अभी I know where this is going. I know where it's going. You want to know? Yeah. मैं क्या कह रहा हूँ कि we met as musicians, then we started working, we started doing programs once in a way, and अभी ऐसा है कि एक एल्बम किया तो ट्यूनिंग हो गई, तो ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं and we are very similar in a lot of things, so that helps to work and we like each other's company also. We keep talking, you know, anything under the moon, yeah, and तो एक मज़ा आता है, भाईचारा है, and I think it's lovely to keep doing this. बिल्कुल. तो for me, see, एक तो my relationship, in my own head,
My relationship with Hari ji stems from a very deep sense of respect first and foremost that's there. वो जितना भी हम हंसी मजाक कर ले, जो भी कर ले, वो नहीं जाएगा. That is बरकरार. That is the whole the keyhole with which I'm viewing him, you know. But when you get to know him, he's so charming, he's so sweet, he's just so affectionate and all of that. कि for me the respect goes up even more. If it was कि हाँ ये फनकार इस लेवल के हैं, इस ग्रेट आर्टिस्ट हैं, यहाँ तक सीमित है. बट इंसान जब दिख जाए कि ये इंसान भी इतना बेहतरीन है, then you feel even more respect. So I really think of him as an older brother who shows the path, you know, कि ऐसा चलना चाहिए जिंदगी में. आंखें नम हो जाती है जब भारत के लिए हम गाना गाते हैं, जैसे कि आपकी आंखों में मैं देख सकती हूँ वो नमी, और मेरे भी आंखों में आ गई थी. तो सारे जवान जिन्होंने अपनी जान दी थी उन सबको श्रद्धांजलि. नमस्कार, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ. आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुरों के दो फनकार, दो जादूगर से. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरिहरन सर की और विक्रम घोष की, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन दिनों अपने नए गाने को लेकर चर्चा में हैं. सर, हरि सर एंड विक्रम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में. थैंक यू, नमस्कार. थैंक यू, नमस्कार. सबसे पहली बात तो आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे. हाँ, थैंक यू आपको भी और सारे आपके दर्शक को भी. सर, आप दोनों लोग कमाल करते हैं. पिछली बार आपने बोला इश्क हवाई है, इस बार आप बोल रहे हैं मनमर्जी. आखिर ये किसकी मर्जी है, रब की, सुरों की या आपकी? हरि जी. दो दीवाने लोगों की मनमर्जी है. जब दो वो भी दीवाने सही है. मिलते हमारे हैं, मन जब दो दीवाने मिलते हैं तो कुछ नया कर जाते हैं. इस बार ये दीवाने क्या लेके जी. आए हैं? हम लेके आए हैं 5 खूबसूरत गाने जी. जो हर रंग में, अलग अलग रंग में है. 5 गाने, और इसमें रोमांस है, ब्लूज है, कव्वाली है, गीतनुमा गजल है. जी. और ये विक्रम जी ने कमाल कर दिया इन कॉम्पोजिशंस में. और उनके जो अरेंजमेंट है वो उस एक एक कहूंगा कि ये बड़ी सादगी है, और तीर जो है सीधे आपके दिल पे घुस जाएगा जी. ये मुझे लग रहा है कि इट्स स्ट्रेट अ सोल टॉक. विक्रम जी. थैंक यू हरि जी. थैंक यू हरि जी. के साथ जब हम काम करते हैं, एक अजीब सा प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस से कभी कभी जो ओरिजिनल हमारा आइडिया होता है वो कहीं और चला जाता है. उसीलिए इस एल्बम का नाम है मन मर्जी, क्योंकि ये मर्जी जैसे घूमते रहता है, हमारा प्रोजेक्ट भी घूमते घूमते जाता है. सो वी started with the thought that we will do another album. शायद it will be a similar kind of album. लेकिन जब हमने काम चालू किया तो फिर लगा कि नहीं, काफी और वेरिएशन आ गया इसमें. एंड हरि जी ने मुझे एक बार बताया कि मैंने हरि जी से पूछा कि हरि जी, आप ऐसा कोई गाना है, ऐसे कोई टाइप का गाना है जो आपने नहीं गाया या कम गाया है? तो ही सेड कवाली. सो the song that is releasing today is the first song of the album, which is called कवाली. और वो कवाली का जो जॉनरा है वो बड़ा कम हो गया है आजकल. तो वो जो और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी वो जो माहौल होता था, ये सारे लाइव ढोलक बजते हैं, फिर उसके साथ हारमोनियम बजता है, फिर बुलबुल तरंग, तो हमने सब वापस लाया कि वी हैव अ बुलबुल तरंग प्लेइंग, हारमोनियम प्लेइंग, ढोलक प्लेइंग. तो बड़ा मजा है इस गाने में. एंड हर जी इज एब्सोल्युटली sung it like a dream. वो तो सारे गाने like a dream ही गाते हैं, लेकिन इस गाने में he is shown कि how a kawali can, there are different kinds of kawalis. This is a romantic kawali. That's why we're releasing it on Valentine's Day. और इसमें एक रोमांस भी है. हेलो, नमस्ते. मैं हूँ पायल अरगोड़े. ईटीवी भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ है पद्मश्री हरिहरन जी और तबला माएस्ट्रो विक्रम घोष. वैलेंटाइन डे के अवसर पर मनमर्जी एल्बम रिलीज होने वाला है, उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
तो जानते हैं इस एल्बम के बारे में। तो हरिहरन जी और विक्रम जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। हम मन मर्जी जाना- ये एल्बम है, 5 उसमें गाने हैं। कव्वाली एक स्टाइल, एक गाना जो है कव्वाली स्टाइल में है, एक गजल में है, एक गीत में है, एक ब्लूज में है। तो हर हर अलग अलग कंपोज हुआ है। विक्रम जी ने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है और इसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में विक्रम जी आपको बताएंगे। जी जी। हमारा पहला गाना जो है कवाली, वो रिलीज हो रहा है with a video also, of course. Hariji had said he had not sung a kawali, तो इसलिए उनके लिए कवाली हमने कंपोज किया, और he has done such a brilliant job like only Hariji can. All the songs are very fresh compositions, and they have very interesting instrumentation also. And of course, Hariji's voice is the char chand on all the songs. And this is our second album together. The first was Ishq, 2020, late 2020, and now Man Marzi is going to be out. We're very, very excited, and the feedback has been fantastic. People are really loving the songs. जिन्होंने privately सुना है, और अब कल से तो सब public platform पे सुन पाएंगे. So it's very happy for us. जी जी जी। हरिहरन जी, इस वैलेंटाइन डे के अवसर पे हम कोई रोमांटिक गाना सुनना चाहते हैं। रोमांटिक? यस। रोमांटिक तो आप, बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के ये के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you. यस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you जी। थैंक यू सो मच।